A very good morning to all of you. So in previous class we have completed a topic, what is the meaning of the what are the concept of the business and the meaning of the business, as well as the what are the different characteristics of the business, and we have already studied the definitions of the business by the which is given by the different authors. Next we have studied what are the different characteristics and the nature of business, in which we have studied it is an economic activity, production or the procurement of the goods and services, sales or exchange of goods and services for the satisfaction of human needs, dealing in goods or services on a regular basis, profit earning, uncertainty of the return or risk. Okay, and in previous class we have also started the topic that is multiple objective of the business. So in the multiple objective of business, we know very well that the businessmen always have some multiple objective. They cannot follow only one objective. All objective are important for them, but the most important objective for any businessman is to earn more and more profit. Okay, so business objective is classified into three, that is economic objective, social objective and the human objective. Okay, so in previous class we have started the what are the economic objective of the business, that is survival, profit as well as growth of the business. The social objective which we have discussed, that is supply of the desired quality of products, avoidance of the unfair trade practices, employment generation. Okay, as well as we have discussed the social service or the community service and avoidance of the pollution. Okay, till here we have already discussed in previous class. Now in today's class we are going to study the what are the human or the individual objective, as it is the third category of the objective of the business, of the multiple objective of the business. Okay, so let's start. That human or individual objectives are related to employees of the organization. Employees are valuable resources who contribute significantly to the success in business. To get maximum from employees and to keep the employees motivated, the business must take care of their employees by pursuing the individual objectives. The common individual objectives are, okay, human और जो individual objectives होते हैं, they are रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जो ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ है ऑर्गेनाइजेशन के. सो एम्प्लॉयज़ आर दी वैल्यूएबल रिसोर्सेज हु कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू दी सक्सेस इन बिजनेस. ठीक है, एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं टू हु कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली, जो क्या करते हैं सिग्निफिकेंटली, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टू दी सक्सेस इन दी बिजनेस. बिजनेस के सक्सेस होने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है. टू गेट दी मैक्सिमम फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ एंड टू कीप द एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड, द बिजनेस मस्ट टेक केयर ऑफ देयर एम्प्लॉयज़ बाय परसुइंग द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, कि टू गेट दी मैक्सिमम मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनसे मैक्सिमम अर्न करना या मैक्सिमम उनसे लेने के लिए, एंड टू कीप द एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड, जो भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं उनको मोटिवेटेड करने के लिए, द बिज़नेस मस्ट टेक केयर ऑफ देयर एम्प्लॉयज़. जो बिज़नेस है वो अपने एम्प्लॉयज़ का क्या करे, बहुत ही टेक केयर करे, बहुत ही केयर करे, बाय परसुइंग द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव. मतलब इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को क्या करके वो परस्यू करके, थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड करके वो उसको ज़्यादा क्या कर सकता है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव का टेक केयर करना चाहिए. सो दैट इंडिविजुअल मतलब एम्प्लॉयज़ का केयर करना चाहिए, सो दैट वो भी क्या होंगे, मोटिवेटेड होंगे एम्प्लॉयज़ और वो अपना मैक्सिमम देंगे. ओके, सो द कॉमन ऑब्जेक्टिव्स आर, कि क्या इसके ऐसे कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं. इट इज़ दी
सॉरी इट इज़ दी प्रोवाइडिंग दी गुड वर्किंग कंडीशन। ये क्या है? सबसे पहले है कि गुड वर्किंग कंडीशंस क्या है किसी भी एम्प्लॉय को प्रोवाइड करना चाहिए। अगर उनको क्या है प्रॉपर गुड वर्किंग कंडीशन मिलेगी, वो अपने आप को बहुत जल्दी अडाप्ट कर लेंगे वहाँ की सिचुएशन में, वहाँ की इन्वायरमेंट में क्या है बहुत फ्रेंडली हो जाएंगे। अगर वो फ्रेंडली हो जाएंगे तो बहुत इंट्रिंसिक मोटिवेटेड हो जाएंगे, मतलब इंटरनली वो बहुत मोटिवेटेड होकर वहाँ पे वर्क करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ पेमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड सेटिस्फैक्टरी वेजेस एंड सैलरी। जो पेमेंट होगा वो क्या होना चाहिए? सेटिस्फैक्टरी वेजेस एंड सैलरीज होना चाहिए। मतलब ऐसा हो कि कॉम्पिटिटिव, अगर वो किसी और कंपनी के साथ कंपेयर करें तो वहाँ से उनको क्या हो अपने आप को बेटर कंडीशन में देखे इन द केस ऑफ देयर वेजेस एंड द सैलरी। वेजेस और सैलरीज़ के टर्म में वो क्या है अपने आप को ज़्यादा कंफर्ट जोन में फील करें। पेमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड सेटिस्फैक्टरी वेजेस एंड सैलरी क्या होना चाहिए? वो कॉम्पिटिटिव और सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए, मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो क्या हों? सेटिस्फाइड। सो पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय बाय इम्पार्टिंग ट्रेनीज टू एम्प्लॉयज़ एंड कीप अपडेटिंग देयर नॉलेज। ठीक है, और क्या होना चाहिए? पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय का भी होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि जो डिफरेंट एम्प्लॉय हैं वो बस अपने आप को पूरा फुल्ली डेडिकेटेड कर दे फॉर देयर वर्क इन दी कंपनी। क्या करना है कि कंपनी को क्या करना है या बिजनेसमैन को क्या करना है, जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी उसको बहुत टेक केयर करना है कि उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट पे भी बात करना है। तो उसके लिए क्या है? बाय इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज़, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या करो? डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, स्किल्स प्रोवाइड करो एंड कीप अपडेटिंग देयर नॉलेज। और उनकी नॉलेज को क्या है कंटिन्यूसली अपडेट भी करते रहो। ऐसा नहीं कि उनकी नॉलेज क्या है वो अपडेट नहीं हो रही, वही प्रीवियस नॉलेज वो लेके चल रहे हैं, उनको मार्केट कंडीशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है। इसके लिए क्या है कि पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय होना है। उसमें क्या है? डिफरेंट ट्रेनिंग्स स्किल्स क्या है प्रोवाइड करना है एम्प्लॉयज़ को एंड कीप अपडेटिंग देयर नॉलेज, और उनके नॉलेज को कंटिन्यूसली अपडेट भी करना है। पीयर रिकॉग्निशन एंड रिस्पेक्ट by encouraging employees to take initiative and participating in the decision making। ठीक है, जो भी पीयर है, जो भी साथ में उनके काम कर रहे हैं, को वर्कर्स हैं, उनका रिकॉग्निशन एंड रिस्पेक्ट बाय द इनकरेजिंग एम्प्लॉयज़। और क्या है कि जो भी डिफरेंट रिस्पेक्ट भी प्रोवाइड करना है किसको? एम्प्लॉयज़ को, कि इनको इनकरेज करने के लिए टू टेक इनिशिएटिव एंड पार्टिसिपेटिंग इन द डिसीजन मेकिंग, कि उन्हें इनिशिएट करो एज वेल एज उनको क्या करना है कि उन्हें ज़्यादा मोटिवेटेड करो कि वो जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें वो फुलर क्या करे? पार्टिसिपेशन करें। ठीक है, क्योंकि उनको हमें क्या करना है? मोटिवेटेड और इनकरेज्ड रखना है कि अगर वो क्या है ज़्यादा इनकरेज्ड रहेंगे और वो क्या है मोटिवेटेड रहेंगे तो अपना किसी भी कंपनी किसी भी बिजनेस में वो अपना 100% देंगे। ओके, प्रोवाइडिंग द स्पेसिफिक बेनिफिट्स सच एज हाउसिंग फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़, फ्री एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन एक्सेट्रा। ठीक है, स्पेशल बेनिफिट्स कैसे मिलेगी? उनको हाउसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करो, हाउस प्रोवाइड करो, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करो, मतलब उनको कोई जो कम एकोमोडेशन पे मतलब कम उसका फ़ीस लगे वैसे क्या है हाउस प्रोवाइड करो, कम रेंट पे करना पड़े, और वो भी क्या मेडिकल फैसिलिटीज़ भी फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करो। फ्री एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन, जो भी उनके चिल्ड्रन हैं उनको क्या हो फ्री एजुकेशन भी क्या है किसी भी स्कूल में मिले। तो ऐसे अगर क्या है ये सारे बेनिफिट्स अगर किसी भी एम्प्लॉयज़ को मिलेंगे तो वो क्या होगा? मोटिवेटेड भी रहेगा और अपना ही विल और शी विल गेट मैक्सिमम, अपना वो मैक्सिमम भी देगा किसी भी बिजनेस इंटरप्राइजेस में। ओके, सो बिजनेस ऑब्जेक्टिव। ओके, सो इट इज़ योर ह्यूमन और द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। So next one is here we are seeing that the business objective. Okay, so business objective, as we studied multiple objective of the business, so it is of three, it is divided into three category, that is economic objective, social objective and the individual objective.
So in the economic objective, it is divided into three, that is survival, profit and growth. Okay, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आ जाएगा कि बिजनेस का सर्वाइवल की बात करेंगे कि बिजनेस क्या है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक वो सर्वाइव करे, प्रॉफिट हो बिजनेस में, एज वेल एज ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, की बिजनेस का क्या होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए. सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आएगा, सप्लाई ऑफ द डिज़ायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, कि जो भी बिजनेसमैन है उसको क्या करना है कि जो भी प्रोडक्ट वो सप्लाई कर रहा है उसकी क्या होनी चाहिए, क्वालिटी डिज़ायर्ड होनी चाहिए. मतलब ऐसा नहीं कि वो वर्स्ट क्वालिटी में क्या करे, गुड्स को सप्लाई करे. अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो भी अनफेयर ट्रेड है लाइक अडल्टरेशन हो गया, ब्लैक मार्केटिंग हो गया, वेइंग में क्या कर दो थोड़ा मैनिपुलेशन, तो ये सारे क्या है ट्रेड, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को इग्नोर करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए. अदरवाइज़ क्या है कि ऐसे बहुत सारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लॉज भी प्रिपेयर किए गए हैं जो किसी भी बिजनेस के अगेंस्ट भी क्या कर स्यू किया जा सकता है, कि उसके अगेंस्ट वो क्या कर सकते हैं कि किसी भी लॉ में जाके या किसी में डिफरेंट वहाँ जाके उसके अगेंस्ट फाइल भी केस की जा सकती है. नेक्स्ट वन इज़ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. ओके, की ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट हो सकती हैं, कि अगर ज़्यादा बिजनेस क्या है, बिजनेस सेटअप होगा, बिजनेस इंटरप्राइजेस, सो इट विल ऑल्सो क्रिएट दी employment opportunities, it will generate the employment opportunities. Next one is community service, कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट कम्युनिटी सर्विसेज भी करते हैं, लाइक डोनेशन करते हैं, चैरिटी करते हैं, NGOs में क्या करते हैं, अपने मनी को इन्वेस्ट करते हैं, ऑर्फनेज जाते हैं, ओल्ड एज होम जाते हैं, तो यहाँ पे वो लोग का क्या है, इन्वेस्टमेंट करते हैं. तो ये क्या है, इनका एक कम्युनिटी भी सर्विस करते हैं. नेक्स्ट वन इज़ अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन. एक नेक्स्ट क्या हो गया कि पॉल्यूशन को भी अवॉइड करना. ऐसा नहीं कि पॉल्यूशंस क्या है कि एकदम कंटिन्यूसली होते जा रहे हैं, तो बिज़नेस को क्या करना चाहिए, बिजनेसमैन को, कि इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, इन्वायरमेंट को भी क्या करना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए. सो अवॉइडेंस ऑफ द पॉल्यूशन. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज़ इंडिविजुअल और द ह्यूमन ऑब्जेक्टिव. सो फर्स्ट वन इज़ गुड वर्किंग कंडीशन, की क्या है कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी बिजनेस एम्प्लॉयज़ को क्या करना चाहिए, डिफरेंट एक प्रॉपर एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए जहाँ पे वो वर्क प्रॉपरली क्या कर सके, काम करे. कोई एम्प्लॉयज़ कॉम्पिटिटिव सैलरी देनी चाहिए, मतलब कॉम्पिटिटिव और सेटिस्फैक्ट्री सैलरी और वेजेस भी देना चाहिए. पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट भी हो किसी भी एम्प्लॉय का, जैसे उसको डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, एज वेल एज डिफरेंट स्किल्स प्रोवाइड कर सकते हैं. पीयर रिकॉग्निशन, कि वो अपना जो भी उसके साथ वर्किंग है, को वर्कर्स हैं, उनके साथ उनका वो रिकॉग्निशन करे कि उनके साथ कैसे उसको एक कोऑपरेशन और कोऑपरेटिव नेचर के साथ उनके साथ पर्सनल रैपोर्ट अच्छा प्रिपेयर बना के उनके साथ वो वर्क करे. और स्पेशल बेनिफिट कि क्या कर सकता है कि स्पेशल बेनिफिट भी प्रोवाइड किया जा सकता है, कि लाइक एजुकेशन की फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी एंड फ्री एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द एम्प्लॉयज़. सो ये सारी बेनिफिट्स भी क्या है, बिजनेस प्रोवाइड कर सकता है. सो इट इज़ योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस, कि प्रॉफिट का बिजनेस में क्या रोल है. हमें पता है कि प्रॉफिट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, कि अगर कोई भी बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा तो वो ये सारे जो ऐसे हमने ये सब पढ़े ना, डिफरेंट ये सब चीज़ें, इनका कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है. जब उसको कोई प्रॉफिट नहीं होगा तो वो कैसे डिफरेंट सैलरीज अच्छी देगी या अच्छा देगा, या एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, या कम्युनिटी सर्विस करेगा, ऐसे कोई भी फंक्शन वो करेगा. तो सो देयर शुड बी प्रॉफिट. क्या है, इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस. So business is an economic activity. So earning profit is a main objective of every business. Although earning profit cannot be only your sole objective of a business, but it is a very important objective of every business. A business earn profit for the various reasons. क्या है कि जो बिज़नेस है वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी. हमें पता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि जिसमें हम प्रोडक्शन, परचेज, सेल और दी
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं फॉर द अर्निंग, फॉर द मेकिंग द मनी, कि मनी को मेक करने के लिए हम ये सारी एक्टिविटीज़ करते हैं. सो बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है. सो अर्निंग प्रॉफिट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस. की हर एक बिजनेस का क्या है, हर एक बिजनेस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट. सो ऑल्दो अर्निंग प्रॉफिट कैन नॉट बी ओनली और सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस. की अर्निंग प्रॉफिट क्या है, ये एक सोल ऑब्जेक्टिव किसी भी बिजनेस का नहीं है, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस. बस ये क्या है, बट ये क्या है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है किसी भी बिजनेस का. सो अ बिजनेस मैन अर्न प्रॉफिट फॉर अ वेरियस रीज़न. जो बिजनेस मैन है वो प्रॉफिट अर्न करता है फॉर द वेरियस रीज़न, बहुत सारे रीजन्स की वजह से. सो दीज रीजन्स आर, ये रीज़न क्या है? फर्स्ट वन इज survival. So a business and the businessman cannot survive for a long time without earning adequate profit. कि कोई भी बिजनेस और कोई भी बिजनेसमैन cannot survive for a long time. कि कोई भी बिजनेस एज वेल एज बिजनेसमैन बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा विदाउट अर्निंग एडिक्वेट प्रॉफिट. आपको लगता है कि कोई भी बिजनेसमैन है, उसको अगर प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो भी वो बिज़नेस को कंटिन्यू किया रहेगा? अगर उसको लगेगा कि लॉस हो रहा है तो वो क्या कर देगा? अपने बिज़नेस को शट डाउन कर देगा ना. तो वैसे ही अगर ये बिज़नेस है और कोई बिजनेसमैन है जो उसमें जो बिज़नेस कर रहा है, उसको लगेगा कि उसको इतना जो भी कॉस्ट वो इनकर कर रहा है उतना उसकी रेवेन्यू उसको रिटर्न नहीं मिल रही है, तो क्या वो कोई भी बिज़नेस करना चाहेगा? कभी नहीं. तो बिज़नेस और बिजनेसमैन कैन नॉट सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम. बहुत लॉन्ग टाइम तक वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा विदाउट अर्निंग एडिक्वेट प्रॉफिट. कि अगर उसको प्रॉफिट एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं मिलता है. प्रॉफिट इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम. प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर अ बिजनेस मैन. कि प्रॉफिट एक सोर्स है इनकम का किसी भी बिजनेस मैन के लिए. विच बिकम्स हिज मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. ठीक है, जो क्या हो जाता है, एक सोर्स हो जाता है. मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी के पास प्रॉफिट होगा, कोई भी बिजनेसमैन के पास प्रॉफिट होगा, तो वही उसका क्या है? एक सोर्स है इनकम. तो जो क्या है उसका लाइवलीहुड के लिए, वो अपनी जो भी उसकी लाइफ है उसको ईजिली वो फुलफ़िल करे, अपने जो भी उसके मिनिमम नीड्स है उसको वो फुलफ़िल करे, उसके लिए क्या है? सो प्रॉफिट क्या है? इट इज़ द सोर्स ऑफ इनकम फॉर द बिजनेसमैन. So profit is needed to satisfy the needs of the businessman and his family members. Profit क्या है? is needed. Profit की need होती है to satisfy the needs of the businessman. कि जो भी needs है businessman की उसको satisfy करने के लिए, fulfill करने के लिए profit बहुत important है. As well as the his family members की profit is needed to satisfy the need of the business. Profit needed है कि इससे क्या है, जो भी needs है businessman की एज वेल एज उसके फैमिली मेम्बर्स की, वो भी क्या होंगी? सेटिस्फाइड होंगी. नेक्स्ट वन इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. सो द बिजनेस इज एक्सपेंडेड ओनली व्हेन इट इज़ अर्निंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. व्हेन प्रॉफिट इज लार्ज, a part of it can always be reinvested for expansion or the diversification of production and other operation of the business. Retention of profit is an internal source of fund. The internal source of fund is more dependable and cheaper source as comparison to external source like bank, financial institution, etc. Because when businessman borrows from the external source, it has to mortgage its asset and pay high rate of interest. Whereas on the retained profit, there is no interest and company can easily use it for the expansion and the ग्रोथ प्रोजेक्ट. ओके, इसमें क्या होता है? इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द बिजनेस इज एक्सपेंडेड ओनली व्हेन इट इज़ अर्निंग द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. ठीक है, कोई भी बिजनेस तभी एक्सपैंड होगा जब व्हेन इट इज़ अर्निंग, व्हेन दे अर्निंग द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. वो सफिशिएंट अमाउंट प्रॉफिट को क्या करते हैं? अर्न करते हैं. व्हेन प्रॉफिट इज़ लार्ज, अ पार्ट ऑफ इट कैन ऑलवेज बी री इन्वेस्टेड और द एक्सपेंशन और द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन. जब प्रॉफिट क्या होगा, किसी भी बिजनेस का ज़्यादा होगा, तो उसका पार्ट क्या है? दे कैन बी, उस प्रॉफिट के पार्ट को वो क्या करेंगे? फिर से इन्वेस्ट करेंगे
फॉर द एक्सपेंशन एंड द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन, कि अपने बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे, मतलब और लार्ज लेवल पे लेके जाएंगे और डाइवर्स करेंगे प्रोडक्शन, कि अगर वो पहले वीट का प्रोडक्शन कर रहे थे या किसी कॉटन का प्रोडक्शन कर रहे थे, वो किसी और ही प्रोडक्ट का क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, मतलब डाइवर्सिफिकेशन, एक प्रोडक्ट से वो डाइवर्सिफाई होंगे। एंड अदर ऑपरेशन इन ऑफ द बिजनेस, और अदर ऑपरेशन जो भी बिजनेस का है उस पर भी वो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट इज़ एन इंटरनल सोर्स ऑफ फंड। रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट मतलब कि अगर कोई भी डिफरेंट बिजनेसमैन है और बिजनेस है, वो क्या करता है, अगर वो अपना प्रॉफिट को कुछ प्रॉफिट क्या है वो अपने पास एज अ रिजर्व रखता है, मतलब हर एक पूरा अमाउंट को वो इन्वेस्ट नहीं करता है, कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दे केप्ट एज अ रिजर्व, उसको बोलते हैं रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को रिटेन करना। तो ये क्या है, एक इंटरनल सोर्स ऑफ फंड का, कि अगर कल उसको कभी अपने बिजनेस में फ़ंड इन्वेस्ट करना होगा तो वो उस मनी को क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है। सो द इंटरनल सोर्स ऑफ फंड इज़ मोर डिपेंडेबल एंड चीपर सोर्स एज कंपेरिजन टू एक्सटर्नल सोर्स। जो भी इंटरनल सोर्स है फंड का वो क्या है, मोर डिपेंडेबल है, मतलब इंटरनल सोर्स बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल है एंड चीपर सोर्स है, चीपर सोर्स है बिकॉज एज कंपेरिजन टू एक्सटर्नल सोर्स। कि इंटरनल सोर्स होने का मतलब है कि बिजनेसमैन के पास ऑलरेडी क्या है, अपना फंड है, वो उसी को क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा, और वो चीपर भी हो जाएगा एज कंपेरिजन टू एक्सटर्नल, क्योंकि अगर वो एक्सटर्नली क्या करेगा, ज़्यादा अब फंड को लेगा तो उसको क्या करेगा, हाई क्या करना पड़ेगा, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। एक्सटर्नल सोर्स लाइक बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। ओके, सो बिकॉज व्हेन बिजनेस बोरोज फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, जब बिजनेस क्या है वो बोरो करेगा, मनी को बोरो करेगा और लोन लेगा फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, बाहर कोई सोर्स है लाइक बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सो इट हैज़ टू मॉर्गेज हिज असेट्स, अपने असेट को उसको क्या करना पड़ेगा, मॉर्गेज मीन्स उसको गिरवी रखना पड़ेगा, एंड पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उसी पे उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। वेयर एज ऑन द रिटेन्ड प्रॉफिट जो बिजनेसमैन ने अपने पास पूरे अमाउंट को इन्वेस्ट नहीं किया था, कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को अपने पास रिटेन कर लिया था, रख लिया था, उसको अगर वो बिजनेसमैन यूज़ करेगा, सो देयर इज़ नो इंटरेस्ट, उसको कोई भी अपने ही पैसे पे तो उसको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, एंड कंपनी कैन ईजिली यूज़ इट फॉर द एक्सपेंशन एंड द ग्रोथ प्रोजेक्ट। और कंपनी क्या है, इस मनी को वो ईजिली यूज़ कर सकती है फॉर द एक्सपेंशन एंड द ग्रोथ प्रोजेक्ट। Now the third one is symbol of efficiency or an index of performance. Okay, so profit indicate whether a business is being managed efficiently or not. Okay, profit क्या indicate करता है कि कोई भी business क्या है वो properly managed और efficiently it is प्रॉपरली मैनेज्ड और नॉट, कि प्रॉफिट के ही थ्रू हम जान सकते हैं कि कोई भी बिजनेस या बिजनेसमैन ने कितना प्रॉफिट को अर्न किया। अब इससे हम ये समझ सकते हैं कि वो जो बिजनेस हुआ है वो एफिशिएंटली मैनेज हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, सो प्रॉफिट एक्ट एज एन इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ दोज हु मैनेज द बिजनेस। ठीक है, प्रॉफिट कैसे एक्ट करता है, इट एक्ट एज अ इंडेक्स ऑफ द परफॉर्मेंस, कि परफॉर्मेंस का इंडेक्स है जिसको हम उसको इंडेक्स थ्रू दी वैल्यूज़ और थ्रू दी नंबर्स हम उसके परफॉर्मेंस को चेक कर लेते हैं कि द ऑफ दोज हु मैनेज द बिजनेस, कि उसको हम जो भी हम लोग जैसे मैनेज किए हैं बिजनेस को, उसको हम लोग उसके परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। हायर प्रॉफिट इंडिकेट द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट एंड लोअर प्रॉफिट इंडिकेट्स इनएफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। अगर किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट क्या है वो बहुत ज़्यादा होगा तो ये हम समझ सकते हैं कि वो जो मैनेजमेंट है, जो बिजनेस है, वो बहुत प्रॉपरली ही एफिशिएंटली क्या हुआ था, मैनेज हुआ था। एंड लोअर प्रॉफिट इंडिकेट दी इनएफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, कि अगर बिजनेस का प्रॉफिट क्या आ रहा है, लोअर आ रहा है, इसका ये मतलब है कि वो मैनेजमेंट इनएफिशिएंटली हुआ है, मतलब बहुत प्रॉपरली बिजनेस को क्या किया, एफिशिएंटली क्या है, बहुत प्रॉपरली मैनेज नहीं किया गया। सो द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस कैन जज बाई इट्स एबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट, की कोई भी बिजनेस का सक्सेस हम कैसे जज कर सकते हैं,
बाय इट्स एबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट, की उसकी क्या एबिलिटी है प्रॉफिट अर्न करने की। ओके, नेक्स्ट वन इज रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द reward for the bearing the risk. Profit is considered as the price or reward paid to businessman for bearing the risk. Okay, profit क्या है? Profit is considered as a price और reward. Profit को हम कैसे consider करते हैं? एक price और reward की तरह which is paid to a businessman. businessman को paid होता है for bearing the risk, क्योंकि businessman क्या है, वो different risk को क्या करता है, वो bear करता है। तो प्रॉफिट क्या है, इट इज़ कंसीडर्ड एज द रिवॉर्ड, कि उसने अगर ज़्यादा रिस्क लिया है तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट भी मिला। सो बिजनेसमैन इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस। बिजनेसमैन क्या करते हैं, मनी को इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, ओनली विद द होप ऑफ द अर्निंग प्रॉफिट, इस होप के साथ कि दे विल अर्न द मोर प्रॉफिट, वो ज़्यादा प्रॉफिट को क्या करेंगे, अर्न करेंगे। द डिज़ायर टू अर्न प्रॉफिट, जो डिज़ायर है, जो उनकी वांट है अर्न प्रॉफिट, मोटिवेट्स द बिजनेसमैन टू बियर द अनसर्टेन एंड अनएक्सपेक्टेड रिस्क। ठीक है, जो डिज़ायर है एक अर्न प्रॉफिट, तो वो उनको, कोई भी बिजनेसमैन को क्या करती है, एक मोटिवेट करती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड और अनसर्टेन रिस्क को बेयर करे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो रिस्क को बेयर करेंगे सो देयर इज़ चांसेस कि उन्हें प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा। अगर कोई वो रिस्क को ही बेयर नहीं करेंगे सो देयर इज़ लेस चांसेस ऑफ द प्रॉफिट। सो प्रॉफिट एंड रिस्क आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। प्रॉफिट और रिस्क क्या है, एक दूसरे से डायरेक्टली लिंक्ड है। अगर इफ़ एनी बिजनेसमैन और द बिजनेस वांट टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट, दे हैव टू इंक्रीज द रिस्क ऑल्सो। ओके, उन्हें अपने रिस्क को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। द हायर द रिस्क द मोर इज़ द प्रॉफिट। ठीक है, हायर द रिस्क द मोर इज़ द प्रॉफिट। जब ज़्यादा रिस्क होगा तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, एंड द लोअर द रिस्क लेस विल बी प्रॉफिट। जब लेस, कोई रिस्क ही नहीं लेगा बिजनेसमैन तो कोई चांसेस भी नहीं होगी प्रॉफिट की, तो लेस विल बी द प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होगा, वो भी लेस होगा। ओके, नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट वन इज हेल्प्स टू गेन रेपुटेशन और द गुडविल है। अ प्रॉफिट अर्निंग कंपनी ऑलवेज हैज़ बेटर रेपुटेशन इन द मार्केट, कि कोई भी जो प्रॉफिट अर्निंग कंपनी होती है उनका क्या होता है, एक रेपुटेशन होता है मार्केट में एज़ कंपेरिजन टू कंपनीज विच आर रनिंग इन लॉस। उनके कंपैरेटिवली जो कंपनी क्या है, बिजनेस में लॉस फेस कर रही हैं। द रेट ऑफ द अर्निंग प्रॉफिट हेल्प इन क्रिएटिंग अ गुडविल ऑफ द कंपनी, कि जिस रेट से प्रॉफिट अर्न कर रही है कोई भी बिजनेस, वो क्या करता है, वो क्रिएट करता है कि किसी भी कंपनी का कितना गुडविल और कितना क्रेडिट वर्दीनेस है। द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स इंक्रीज विद द इंक्रीज द प्रॉफिट, जो भी मार्केट प्राइस है किसी भी शेयर्स का वो इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन द प्रॉफिट, प्रॉफिट के इंक्रीज होने से। द कंपनी विद हाई रेट ऑफ प्रॉफिट आर एबल टू रेज लोन, जो कंपनीज होती हैं जिनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है वो उसके कैपेबल हैं कि वो ज़्यादा लोन को भी क्या कर पाएंगी, रेज कर पाएंगी, एंड ऑब्टेन क्रेडिट मोर ईजली। अब क्या है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगी तो उनका रेपुटेशन एज वेल एज गुडविल हो जाएगा मार्केट में, तो उन्हें लोन लेना भी ईजी हो जाएगा, एज वेल एज दे कैन ऑब्टेन क्रेडिट फैसिलिटी ऑल्सो। सो इवन एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ प्रेफर टू वर्क इन द प्रॉफिट अर्निंग कंपनी। ठीक है, जो एफिशिएंट एम्प्लॉय हैं वो भी क्या करते हैं, कोई भी यही प्रेफर करता है कि जिस कंपनी में प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है वो उसी में ही काम करने को, क्योंकि वो वहाँ से मोटिवेटेड होते हैं, उनको प्रॉपर सैलरी भी मिलती है अच्छी, और एज दीज आर एबल टू ऑफर हायर वेजेस एंड सैलरी, क्योंकि जो कोई भी कंपनी है ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी तो दे आर एबल टू अर्न दी हायर वेजेस एंड दी सैलरी, वो ज़्यादा वेज और सैलरीज भी क्या करेंगे, अर्न करेंगे। ओके, सो इट इज़ द हेल्प्स टू गेन दी रेपुटेशन और द गुडविल, कि अगर कोई बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा तो उसकी गुडविल, क्रेडिट वर्दीनेस, रेपुटेशन भी अच्छी होगी, और उनका रेपुटेशन होने का अच्छा मतलब है कि लोन भी उसको इजी मिल जाएगा, क्रेडिट फैसिलिटी भी ईजिली मिल जाएगा, और जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो उसी में ही क्या करना चाहेंगे, वर्क करना चाहेंगे, बिकॉज दे एबल टू प्रोवाइड दी ग्रेटर वेजेस एंड दी हायर salaries. Okay, so it is your the
helps to gain reputation of the goodwill. Okay, so what we have discussed in today's class, we have discussed that is what are the multiple objectives. So in which we have discussed the economic objective, social objective, and the human or the individual objective, as well as we have started a topic that is role of the profit in the business, in which we have discussed the survival कि सर्वाइवल में भी प्रॉफिट का रोल है, एक्सपेंशन एंड द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, सिंबल ऑफ एफिशिएंसी और एन इंडेक्स ऑफ द परफॉर्मेंस की एक एफिशिएंसी को भी शो करता है, रिवॉर्ड फॉर द बेयरिंग द रिस्क, अगर वो क्या है प्रॉफिट क्या है, एक रिवॉर्ड भी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर रिस्क को बेयर करेगा तो उसका प्रॉफिट भी अर्न होगा, एंड हेल्प्स टू गेन द गुडविल, कि ये क्या करता है गुडविल को गेन करने में भी हेल्प करता है. ओके, so it's all about your today's class. We will continue this chapter in the next class also.